Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, we have completed 2 lessons. Lesson number 6 and lesson number 7. Both explanation and writing work. Complete your writing work. आपको 6th और 7 का राइटिंग वर्क पूरा कंप्लीट करके लेके आना है. जब भी आप स्कूल आएंगे हम आपका चेक करेंगे. यही आपका होमवर्क है. आपको पूरे साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करके और ऑक्सीजन साइकिल ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको वो एक्सप्लेनेशन भेजे है. लेट अस स्टार्ट द लेसन नंबर 8. यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स. यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स. See the first question which is on page number 88. What is meant by microbes? Microbes means microorganisms. Microbes are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eye. We cannot see it with a naked eye. They live in water, soil and in the air. Some microbes makes us sick. Others are important for our health. Means some make us sick, means some are harmful. They are responsible for many diseases. Others are important for our health, means they are useful bacteria. They are useful for our health. The some are useful and some are harmful. The most common type of bacteria, viruses and fungi are the microbes, and protozoa are also microbes. Protozoa, in the example of protozoa is amoeba. Amoeba is also unicellular microorganisms, microbes. Now see the second question. How did you observe microbes? Microbes are observed by using microscope. We cannot see microbes with our naked eye. Some microbes with our naked eye. So see, you are familiar with different types of microbes. We are familiar with bacteria, viruses and fungi, which are all around us but cannot be seen with our naked eye. So they are around us, they are in the air, in the soil and in the water, but we cannot observe it with our eyes. In what way are they related to our everyday life? So some are useful for us and some are harmful. In this way they are related to our life. The first we will learn about the useful microorganism. The first useful microorganism is a lactobacilli. Lactobacilli is the useful microorganism. To observe the lactobacilli, we have to perform one experiment or one activity. Inshallah, we will perform this activity in our lab. Lab में करके देखिए. एक्सपेरिमेंट है, स्लाइड बनाना है अपने को. That slide is known as temporary slide. Smear a drop of fresh buttermilk on a glass. बटर मिल्क मीन्स छाछ बोलते हैं जिसको अपन. तो छाछ को अपने को, फ्रेश छाछ को एक उसका ड्रॉप आपको उसको उस पर स्प्रेड करना है. स्पॉट लेकर ग्लास स्लाइड पे. लैब में ग्लास स्लाइड ऐसी कांच की पट्टी होती है, ग्लास को ग्लास स्लाइड बोलते हैं. उसके ऊपर अब अपने को उसको लेना है. स्टेन इट विथ मिथिलीन ब्लू. मिथिलीन ब्लू, सैफ्रानिन ऐसे स्टेन कलर होते हैं, लैब में अवेलेबल होते हैं. स्लाइड बनाने के काम आते हैं जिससे स्लाइड कलरफुल और क्लियर दिखती है. तो मिथिलीन ब्लू यहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन, तो इसलिए स्लाइड में जो लैक्टोबैसिला ये अपने को ब्लू कलर के दिखेंगे. एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट. उसके ऊपर अपने को कवर स्लिप रख देना है. कवर स्लिप गोल पतली कांच की टिकली आती है, ग्लिसरीन डालना है और उसके ऊपर फिर कवर स्लिप आपको डालना है. कवर स्लिप इस तरह से डालना है कि एयर बबल्स ना आए. तो ये एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह अपन लैब में करके देखिए. कवर स्लिप डाल दिए बाद ये क्लियर साफ पोंछ लेना है स्लाइड को. ये बन गई अपनी टेम्पररी स्लाइड. फिर उसको ऑब्जर्व द स्मीयर अंडर द 10x ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन विद द मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्ट. तो ये दो लेंस होते हैं, उसको लगे. एक पे 10x लिखा हुआ रहता है, एक पे 60x. जिस पे 10x लिखा है वो इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को 10 टाइम्स ग्रेटर बताता है, एनलार्ज करके बताता है. और जो 60x है वो इमेज को अपने को 60 टाइम बड़ी कर कर बताता है इमेज को. तो पहले 10x में कम इसमें देखना है आपको, फिर ज़्यादा मोर पावरफुल में 60x में ऑब्जेक्ट को देखना है. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. आपको दिख रहे हैं क्या? तो जब अपने स्लाइड बनाएंगे तो ये ब्लू कलर के रॉड शेप के जो अपने को दिखेंगे, दे आर लैक्टोबैसिलाई, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप. ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं क्योंकि इसमें अपन ने मिथिलीन ब्लू डाला है. और ये रेक्टेंगुलर इन शेप के हो गए. और लैक्टोबैसिलाई आर एनारोबिक बैक्टीरिया. तो अपन ने पढ़ा है लास्ट लेसन में एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विथ
the use of oxygen is known as aerobic bacteria. Lactobacilli is anaerobic, means they can produce energy without the use of oxygen. They do not need oxygen for energy production or for respiration. उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. anaerobic बैक्टीरिया है ये. तो ये लैक्टोबैसिलाई रॉड शेप के जो दिखेंगे अपने को, रेक्टेंगुलर शेप के जो दिखेंगे वो हो गए लैक्टोबैसिलाई. यहाँ आप डायग्राम में जो है आपको कलर इसका सैफरन डाला होगा स्लाइड में, इसलिए आपको रेडिश दिख रहे हैं, सैफरन कलर के दिख रहे हैं. और यहाँ पे जो है आपको जो है मिथिलिन ब्लू अपन स्टेन ले रहे हैं तो ब्लू कलर के दिखेंगे रॉड शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के. दैट इज़ अ लैक्टोबैसिलाई विच इज़ अ यूज़फुल बैक्टीरिया. इसको यूज़फुल बैक्टीरिया कहा गया है. क्यों यूज़फुल है ये अभी आगे देखेंगे अपन. हाउ इज़ योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क. योगर्ट कैसे बनता है मिल्क से. देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस प्रोसेस. क्या होता है ये प्रोसेस में. तो लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज, दूध के अंदर जो शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, उसको लैक्टोज बोलते हैं. लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये शुगर के टाइप है. जो अपन घर में खाते हैं शक्कर वो सुक्रोज है. और ये दूध के अंदर नेचुरल शुगर जो होती है ये लैक्टोज शुगर होती है. तो दूध के अंदर की जो शक्कर होता है, मीठापन होता है, लैक्टोज, तो ये लैक्टोबैसिलाई उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. तो ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं. दही का, दूध का दही बनना, ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं. ये काम करते हैं लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. दूध के अंदर की लैक्टोज शुगर को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीजेस. मिल्क जो है बेसिक समझा जाता है तो उसका पीएच जो है लैक्टिक एसिड बढ़ जाने की वजह से, एसिडिक होने की वजह से इसका पीएच डिक्रीज हो जाता है. आपने साइंस 1 में पढ़ा होगा कि पीएच जिसका 7 रहता है उसको अपन न्यूट्रल चीज़ें बोलते हैं. और अगर जिसका पीएच 7 से कम है वो एसिडिक हो जाएगा. और जिसका पीएच ज़्यादा है 7 से, वो चीज़ें बेसिक पकड़ी जाएगी. तो पीएच ऑफ ये लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से इसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. अब मिल्क प्रोटीन जो है कोएगुलेट, गोले होना, ढिकले ढिकले बनना शुरू हो जाएंगे. दस मिल्क प्रोटीन आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिल्क के अंदर होते हैं, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, फैट भी होता है, मिल्क के अंदर वाटर ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, तो वाटर, फैट, ये चीज़ों से अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से प्रोटीन सेपरेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, प्रोटीन के ढेकले ढेकले बन जाते हैं जब दूध का दही बनता है. दैट इज़ व्हाट हैपन व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट. ये होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे इसको. योगर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड. दूध में नहीं मीठापन होता है और दही के अंदर खट्टापन होता है बिकॉज ऑफ अ लैक्टिक एसिड. द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द मिल्क. अगर दूध में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो जो है इसका दूध का दही बिकता है तो उसका पीएच लो हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है. तो लैक्टिक एसिड की वजह से दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो कील हो जाते हैं. तो ये लैक्टोबैसिलाई अदर हार्मफुल बैक्टीरिया को दूध के अंदर के कील कर देता है. सी सम क्वेश्चन विच इज़ ऑन पेज नंबर 88. तो दिस इज अ यूजफुल बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलाई इज अ यूजफुल बैक्टीरिया. तो दिस लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इनटू द मिल्क into a lactic acid and this process is known as fermentation. तो इस तरह से दूध का दही बनता है. See the question which is on page number 88. Why do doctor advise you to have a yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में रहा, इंडाइजेशन रहा या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहा, पेट में गड़बड़ रही, तो दही क्यों बोलते हैं डॉक्टर खाने के लिए. तो ये यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलाई. और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को, स्टमक के अंदर के क्लॉस्ट्रिडियम जैसे बैक्टीरिया को कील करने की इसमें कैपेसिटी रहती है. तो योगर्ट और मिल्क कंटेन यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म which break down complex protein, carbohydrate and fat into more easily absorbable molecule. The bacteria help in प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. इस डाइजेशन में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट फैट को इजीली डाइजेस्ट करने के काम आता है. देयरफॉर डॉक्टर एडवाइस अस टू हैव अ योगर्ट और बटर मिल्क इफ़ वी हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. इसलिए डायरिया भी हुआ तो दही चावल देते हैं. और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं दही लो, छाछ लो, तो क्योंकि ये स्टमक के अंदर के जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इनटू मोर इजीली एब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये बैक्टीरिया. इसलिए इसको यूजफुल बैक्टीरिया कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम टाइम योगर्ट बिकम बीटर एंड फ्रॉथ अप. व्हाई डज दिस हैपन. क्यों होता है ऐसा.
बहुत खट्टा हो जाता है, तो ड्यू टू ओवर फर्मेंटेशन इन योगर्ट मेकिंग प्रोसेस एक्सेस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस विच कॉजेस योगर्ट टू टेस्ट बीटर। ओवर फर्मेंटेशन की वजह से ऑल्सो वेरियस गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस ड्यू टू विच योगर्ट फ्रॉद अप। फेस आ जाता है, झाग आ जाता है उस पर, फिर वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। फर्मेंटेशन ओवर होने के बाद में ज़्यादा खट्टापन आ जाता है दही के अंदर, आवाज़ आती है उसकी खट्टी। विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। तो क्या क्या बनता है घर में? योगर्ट बन सकता है, चीज़ बन सकता है, पनीर बन सकता, घी बनता है। आर द डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। To see what is meant by probiotic yogurt। प्रोबायोटिक योगर्ट एक्टिव बैक्टीरिया होता है इसमें, लैक्टोबैसिलाई, ये बाज़ार में मिलता है प्रोबायोटिक योगर्ट जो अपने स्टमक ऑर्डर को दूर कर सकता है। तो यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई आर एडेड टू दिस ईटेबल, और ये यूजफुल लैक्टोबैसिलाई खाने में ऐड करे हुए रहते हैं। सच ईटेबल, ऐसा ईटेबल जो मार्केट में अवेलेबल है, आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। अपने एलिमेंट्री कैनाल में अगर उतरा हुआ खाना खाने में आया, ख़राब खाना खाने में आया, और पेट में अगर क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, तो वो ये लैक्टोबैसिलाई यूजफुल माइक्रोब्स जो है उसको किल कर सकते हैं एंड कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। तो अपन बगैर दवा के जो है ये दही से ठीक होकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये अपनी जो है एलिमेंट्री कैनाल के बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम को किल कर सकता है, स्टमक डिसऑर्डर को, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को ठीक कर सकता है, इंडाइजेशन को ठीक कर सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूजफुल बैक्टीरिया। इसके अदर यूजेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इतना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 थरोली आप रीड करो, जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो आप नोट डाउन करना। इंशाल्लाह क्लासरूम में आपकी डिफ़िकल्टी ठीक करेगा। लेसन नंबर 7 पे जल्दी हम टेस्ट लेने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट।